itself. When the BJP came into power and lots of things started to happen in different universities, it started from IIT, Madras, and then FDI, then Rohit Jungla incident, Hyderabad State University. Then there were ongoing incidents in Jawaharlal Nehru University. Even after the release of this book, 2018, there has been a lots of troubles, lots of issues that has been happening in different universities, like mostly like Jamia Millia Islamia and American Muslim University. So this was the moment actually lots of people compelled to think about what is happening actually, what is the issue of academic freedom in India. So that's also a critical point of this book. We really have to think about academic freedom at this point. Is this the right point to think about academic freedom? Actually, is it academic freedom is at stake at this point, or some bigger issue than this? So that's also one critical point we have to think about in this discussion. Maybe I'm not actually judging this book or something like that to talk about actually to criticize or to critically think about a book. At least you will have to read two books before that particular book, and at least two books after that. So I do not read a lot on this topic. I'm not an expert on this topic, so I'm not going into some details. So actually, I was talking about the context of this, and also that context mostly defines the content of this book. When BJP came into power and the academic freedom was questioned, even the day-to-day life of the university was questioned. Lots of troubles happened in the universities, like the institutional murder of Rohit Jungla in Hyderabad Central University, and the institutional high-handedness of in Jawaharlal Nehru University. Many student leaders went to jail. Even right now, also many student leaders are in jail, like Sharjil Imam from JNU and Miran Haider from Jamia Millia Islamia. Earlier, also students like Kannaya Kumar or Markal also again he wrote in prison. He was also in prison at that time also. So these kinds of incidents were happening. And also, there were lots of debates happening around us. There were lots of questions thrown at universities. What are you doing at universities? Why should we fund these universities? Like lots of people and politicians were asking, what is this university actually use? Is it useful? We are spending lots of money on it, and is it actually a productive thing? And also, are these people are nationalist enough? There was lots of debate around nationalists, anti-nationalists. So universities had to say that we are thinking in a different realm. Actually, this book is saying that we are thinking in a different realm. There is something called academic freedom, and you have to actually see that. You have to actually consider that in this article. Also, Neeraja Gopal is actually saying that we have to at least right now defend the idea of academic freedom itself. That was the moment. That is the moment right now also. So the university had to say that there is something called academic freedom. There is something called academic leisure. You need some leisure to do academic work. There is also creative education. There is something like creative thinking. There are lots of things like critical thinking. So this basic idea this university community had to think about it. University community also had to talk about it. Actually, this book is one attempt of doing this particular exercise. So this is the immediate context of this book, and also mostly the content is also mostly defined by this immediate context. That's what my reading is. And also in this book, I'm only trying to do in this book. Actually, the authors are trying to put this particular moment in a different larger context. That's what we academicians, mostly scholars do. When something happens in some part of the world, we say it's not some isolated incident. You don't have to worry about it. There's a larger context of this happening. It has been making for long years. There are institutional contexts, there are historical contexts, there are economic contexts. So actually, this book is also doing the same thing. It's saying that what is happening in Indian universities is not some kinds of isolated incident. It has a larger neoliberal economic policy context. It is happening around the world. Lots of university academic freedom is constrained in lots of universities all over the world. It's all even from the birthplace of these kinds of university models like Europe and North America.
There are lots of private fundings are happening. Neoliberal ideologies like getting prominent in those kinds of countries, and they are compelling these universities to be productive. That's what many authors like neoliberal, many authors, many articles like Soman Chattopadhyay's articles actually contextualizing many different articles are dealing with different issues. Soman Chattopadhyay's article particularly dealing with this thing. So he is saying that there is a global neoliberal context of what is happening in India, the crisis of university, and also people are like thinking about what is academic freedom, like Neeraja Gopal Jayal and Shiv Vishwanath, people like Shiv Vishwanathan. They are writing about what is this academic freedom. Do we have like what is this idea of academic freedom? And there are also lots of thinking about how we became at this point. What is the structural institutional developments? There has been lots of institutional developments in higher education in India, like UGC has ministry and many like even in primary education. So policies like the RUSA and also National Testing Agency is coming into play. Different like right now kinds of ranking framework is into play right now. And this, even in governmental level also there are lots of policy frameworks, lots of institutions. So different scholars also thinking about these kinds of institutional developments, and also and they are like looking into that context, the long institutional formations and challenges. Ramaswamy's article and Devadatya Bhattacharya's article is mostly talking about the long institutional developments and what are the criticism we should have to those institutions, what are the critical reflections about these kinds of institutional developments and the proposed institutional and policy developments. And also many articles are also talking about the immediate challenges that we are facing after the BJP came into power in 2014. Like what are the immediate challenges this academia is facing? Like one article about how the scientific research is like even like how illogical researches are being promoted in scientific researchers. Like so with Mahajan's article, he is like talking about the plight of scientific research in India, how these kinds of irrational kinds of research are being promoted and funded by the ruling regime. So these are, I'm just saying that these are the some, I'm just talking about some of the article, largely how this book is contextualizing, kinds of explaining the things that is happening around us, happening around our, like happening in Indian universities, happening around us, or in mostly in the universities. And also, yeah, these are the things I just wanted to simply, I just wanted to, I'm not saying, I'm not claiming that this has been an introduction to proper introduction to this book, but I'm just trying to, this is an edited book, so that's also a kind of a task to introduce an edited book in some short time. So these are the mostly major areas this book is covering. I'm not saying that these are the only major areas. There are another areas, another articles are dealing, and also these are the mostly major areas this book is dealing. This articles, authors are dealing. There are different articles. So one thing I just as a criticism, if we have to think a little bit about it, not as a criticism, to reflect something upon. That's also a question. Like is the 2014 many of these articles, when I was reading, like many of these articles actually we should have. I thought like we should thought about it earlier when we had time, when we had the possibility of changing the institution, when we had the possibility of reflecting on how the our own institutions, our own higher education, the system mechanism of higher education. At that time, we should have thought about this. After 2014, I don't think the regime is simply even not at this point. They are not. They are not like the issue is that they are not going to listen to us. That's not the issue. But the issue is that they have a proper, very proper agendas about this higher education. Not only about the higher education, also about whole whole country. So not only our academic freedom is in stake right now, our life, simple life, our way of life, our language, our food, what we eat, how we live. These very essential questions are at stake at this point. So that's also some way of reflecting on this book, I think. So that's it. Thank you for inviting, and thank you, Mr. Bai, and I would like to listen to other panelists. Thank you.
जी, जज़ाकल्लाह रमीज़ भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस इंट्रोडक्शन और सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू ऑफ दिस बुक। रमीज़ भाई जो है बता रहे थे कि ये जो किताब लिखी गई है, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, ये एक कंपाइलेशन है मुख्तलिफ मज़ामीन का, जो यूनिवर्सिटी एक का जो आइडिया है उस पर लिखी गई है। और ये एक ऐसे वक्त में आई है जब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज पर और जो हमारे आला तालीमी इदारे हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खासतौर से 2014 के बाद में, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट और बीजेपी की हुकूमत यहाँ पर आई है, उसके जरिए से कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज को जो एक डिमोनाइज करने की कोशिश की गई है, यूनिवर्सिटीज को और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो तुलबा है, कहीं ना कहीं उनको एक बदनाम करने की कोशिश की गई कि वाकई ये स्टूडेंट्स सफिशिएंटली नेशनलिस्ट हैं या नहीं है। इस पर भी सवाल खड़ा किया गया है। तो ये एक अच्छा मौका था कि पूरा यूनिवर्सिटीज के रोल पर जो है बात की जाए, यूनिवर्सिटीज का क्या है और क्या होना चाहिए, उस पर कुछ सवालात खड़े किए जाएं। और इसी सिलसिले में जो है ये बुक आई है, प्रोफेसर अपूर्वानंद ने जो है इसे एडिट किया है। तो इस बुक के इंट्रोडक्शन के बाद में जो है हम चाहेंगे कि कुछ सब्सटैंशियल चीजें जो इस बुक में आई है, उसका एक ओवरव्यू आ जाए, उसका एक जायजा लिया जाए, उस पर एक क्रिटिक हो। और उसके लिए जो है हमारे साथ में आज दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले जो है हम इनवाइट करना चाहेंगे प्रोफेसर अनीता रामपाल को। प्रोफेसर अनीता रामपाल इज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर हैं, स्पेशली जो एलिमेंट्री एंड सोशल एजुकेशन, ये आपकी फील्ड है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता चलूं कि प्रोफेसर अनीता रामपाल की जो फॉर्मल एजुकेशन हुई है वो फिजिक्स में हुई है। शी हैज कंप्लीटेड हर पीएचडी इन फिजिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली in 1982. Having said that, she has a whole, ये कहना चाहिए कि आपकी एक पूरी स्कॉलरशिप है एजुकेशन के टॉपिक पर। आपका काफी सारा काम है जो आपने एजुकेशन की फील्ड में किया है। और ये कहना चाहिए कि शी इज अ ट्रूली मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सन। आपने जो है बीएड के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है और उसके अलावा रिसर्च के मैदान में भी जो है आपका काफी सारा कंट्रीब्यूशन है। So, thanks a lot, ma'am. Thanks a lot for joining us today, and we would love to hear from you, Professor Anita Rampal. Thank you very much, and it's very nice to be at this discussion. आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से तो बता दीजिए। जी जी बिल्कुल जी अच्छा। तो और अपूर्वानंद जी ने जो किताब संकलित की है और हमारे कई मित्र हैं जिन्होंने इसमें लिखा है, तो वो भी और बहुत अच्छी एक हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि दोबारा उनको देखकर और फिर आपके साथ साझा करें। I would like to say that this book, as has already been presented, came out at a time when there were a lot of debates about the role of your university, about the role of students and teachers, the notion of academic freedom, और वो आज भी इस तरह के सवाल जो है वो बहुत वाजिब है और इस तरह से बातचीत चल रही है। बट what also strikes me is कि हम जब एजुकेशन में बात करते हैं और हम एजुकेशन पॉलिसीज देखते हैं, कमीशंस देखते हैं, वी आल्सो लुक एट, I mean, I find one of the most fascinating documents whenever I need to look back at what was the vision of education. The first uh, commission which was set up soon after independence, 48 में जो राधाकृष्णन कमीशन बना था, वो यूनिवर्सिटी की ही परिकल्पना पर था, what should be university education like. बहुत ही इंटरेस्टिंग है दैट सून आफ्टर इंडिपेंडेंस हम सोच रहे हैं कि एक स्वतंत्र देश, एक आजाद देश, एक देश जो कि अभी अभी बहुत ही मुश्किल समय से इट्स गॉन थ्रू अ वेरी वेरी ट्रॉमेटिक पार्टीशन. What should it mean for that country to think of higher education and what should the purpose of education be? मैं इसलिए उस समय की बात कर रही हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ भी कुछ लेख पढ़ रही थी और इंटरेस्टिंग है, जैसे मिर्जा गोपाल ने हमें बताया है कि एकेडमिक फ्रीडम की जो डिबेट्स हैं वो कहाँ कहाँ किस किस देश में कैसे हुआ है और उनके कई जगह उनके एक्ट में
या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लाया गया है कि यूनिवर्सिटी का रोल क्या होगा। तो मुझे जैसे कि 1980 का उन्होंने न्यूजीलैंड का एजुकेशन रिफॉर्म एक्ट जो कहा है, उन्होंने कहा है कि वो एक नेसेसरी क्राइटेरियन है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी इट वांट्स टू बी एनी इंस्टीट्यूशन वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड as a university and to it must accept the role as a critic and conscience of society. तो और ये अभी 89 का है कि ये क्या मतलब है एज अ क्रिटिक एंड कॉन्शियस ऑफ सोसाइटी, और ये साउथ अफ्रीका अन्य कई देशों का जिक्र है जिसमें कि उनके लॉज में ये चीज आई है। और क्योंकि सवाल ये होता है कि एकेडमिक फ्रीडम से जब ये बात जुड़ती है कि भाई एकेडमिक फ्रीडम सिर्फ आप अपने ही दायरे में बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओन डिसिप्लिन and in that context what you choose to work on or you choose to speak on, is that what academic freedom is imparted to you, or does it also take the role of a public intellectual or a public spirited activist? So you know, and these are some of the issues that have also come around the world कि आपका काम केवल अपने डिसिप्लिन से है कि एकेडमिक फ्रीडम का मतलब है कि आप एकेडमिक सवालों को पब्लिक डोमेन में भी जो चीजें हो रही हैं उन सवालों से जोड़ते हुए, जैसे आप जानते हैं अभी प्रताप भानु मेहता पर ये बात बहुत उठी थी कि उनके यूनिवर्सिटी से उनको पहले वाइस चांसलरशिप उन पर जोर पड़ा कि वो उससे हटे और फिर उसके बाद एज अ प्रोफेसर हटे। तो ये बात हो रही थी कि भाई जब भी वो लिखते हैं और बहुत एक कटाक्ष लिखते हैं, बहुत ही strong critique agar dikhte hai the government policy, so his field is political science, and if he's questioning what's happening to democracy or what's happening in terms of government policy, how inclusive or how exclusive is it becoming, that is a part of his arena of work, and in any case he has the freedom. So ये चीजें बहुत इस किताब में कई ऐसे लेख हैं जो चाहे साइंस को लेके हैं, और साइंस और सूडो साइंस का क्या रिलेशनशिप है, और यूनिवर्सिटी का इसमें क्या रोल है कि अगर सरकार इस तरह से बातें कर रही है जो साइंटिफिक नहीं है, जैसे आज भी हम सुन रहे हैं कोविड को लेके, अगर किसी ने कहा कि गौमूत्र से कोविड नहीं ठीक होगा तो आप उसको उस पे चार्ज लगा देते हैं, उसको प्रिजन में जेल में डाल देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। So even issues on that, you know, what is the role actually of people in a university? What is the role of academics? So उस संदर्भ में मैं दो चार लाइनें पढ़ना चाहूंगी राधाकृष्णन एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट कि हमें बहुत संबल मिलता है ये सोच के कि जब देश बना था और गढ़ा जा रहा था कि आजाद देश क्या होगा, हम आज बात करते हैं कि नेशनल है या एंटी नेशनल है, हम इतने लो लेवल पर हम गिर जाते हैं इन चीजों को लेके, बट लुक एट द विजन ऑफ अ यूनिवर्सिटी व्हेन वी रीड देन, हमको इसमें बहुत दम मिलता है, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। सो व्हाट इज बीइंग सेड, वन ऑफ कोर्स जब वो ये कमीशन ही बना था तो इसमें लोग ऐसे थे, राधाकृष्णन चेयरपर्सन थे, अभी उसके बाद प्रेसिडेंट बने, मेंबर ही वाज चेयरिंग, मेंबर थे जाकिर हुसैन, प्रोफेसर सैयदन, मेघनाथ साहा, यू नो ये लोग और जो कि जैसे जाकिर हुसैन जमीनी स्तर से शिक्षा में जुड़े हुए थे और बाद में फिर वो भी प्रेसिडेंट बने थे। तो आई एम सेइंग लुक एट दिस इम्पोर्टेंस गिवन टू दिस कमीशन, जिससे कि ऐसे लोगों का चयन भी हुआ और वो फिर ये सोच रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं और इस पे विचार कर रहे हैं, ये चिंतन मनन हो रहा है कि एक यूनिवर्सिटी क्या हो। और वो बल्कि उन्होंने श्री निकेतन, शांति निकेतन, उन्होंने डेनमार्क पीपल्स कॉलेज, इन सब का अध्ययन किया था कि ये क्या कर रहे हैं। तो अलग अलग कई जो वैकल्पिक alternative models of university भी थे, what were they, because they were concerned and that it should not be an elite institution meant only for a small percentage, क्योंकि उस समय लिटरेसी लेवल्स भी कम थे और एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लेवल तो बहुत कम था, तो उसको और ज्यादा पार्टिसिपेटरी, इंक्लूसिव कैसे बनाना है, एंड व्हाट शुड बी द हैपनिंग विद इन अ यूनिवर्सिटी। सो वो कह रहे हैं कि we must look at every type of higher education, literary, scientific, technical, professional,
so that the country can in a short time achieve freedom from want, disease and ignorance. ये जो शब्द है कि देश क्या चाह रहा है करना और क्या देश के सामने एक चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि हम सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कह रहे हैं हम ये बहुत इसका एक द्वयम स्टेटस ना दें और इससे बचे कि एक एरोगेंस जो आ जाता है कि हम कुछ चीजों को प्रोफेशनल एजुकेशन बुलाते हैं और कहते हैं द स्किल ऑफ द माइंड जो है वो बहुत ऊंचा है और स्किल ऑफ द हैंड जो है उसको हम नीचे दर्जा देते हैं। जैसे आज भी हम देख रहे हैं कि स्किल जो है उसको हम हायरार्की बना रहे हैं, मतलब वी एम क्रिएटिंग मोर हायरार्कीज इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल। हमारा एक अलग नॉलेज कमीशन बनता है और अलग एक स्किल डेवलपमेंट कमीशन बनता है। तो वो इसको वार्न हमको कर रहे हैं कि ऐसे ना हो और कह रहे हैं कि हमारे देश में अगर हम देखते हैं तो द सेपरेशन ऑफ स्किल and from the skill of mind, the separation of the skill of hand from the skill of mind has greatly retarded the mastery of the physical world and has been a major cause of poverty, especially in India. तो आज के कॉन्टेक्स्ट में भी जब हम देखते हैं कि आज अगर कास्ट की बात होती है, आज अगर बात होती है कि किस तरह लेबर एंड different kinds of strategies that we are making, and even in a school, I mean, we are opposing the Delhi government school which also tries to segregate children on the basis of so called कि इनकी ability क्या है, जल्दी से अलग कर दो और फिर जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको बोर्ड रिजल्ट्स तक मत भेजो क्योंकि बोर्ड के रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे, उनको ओपन स्कूल में डाल दो and then give them skill courses. So this kind of segregation, university to be used as a model of sorting people out, क्योंकि ये जो होल डिबेट ऑन मेरिट क्या है और मेरिटोक्रेसी क्या है और आप किस तरह का कैपिटल लेके आ रहे हैं, आपके अपने आपको अपना किस संघर्ष से आप पहुंचे भी हैं हायर एजुकेशन तक। हमारे ज्यादा स्टूडेंट्स तो उससे पहले ही पुश्ड आउट हो जाते हैं। हम ड्रॉप आउट नहीं कहते, हम पुश्ड आउट कहते हैं क्योंकि वाकई वो सिस्टम जिस तरह से अरेंज्ड है, वो जिस तरह से इनइक्वालिटीज को और री करता है, जो एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी तो जाके उसका पिनिकल बनता है, वहां तक तो पहुंचना वाकई ही मुश्किल है किसी के लिए, अधिकांश लोगों के लिए। तो इसलिए वो क्या एजुकेशन है जो इंक्लूसिव हो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको कहा है। तो ये राधाकृष्णन कमीशन 48 में बोल रहा है कि ये इस तरह का एरोगेंस जो है कि स्किल ऑफ माइंड स्किल ऑफ हैंड अलग है, यही हमारे देश की पॉवर्टी का भी एक कारण है। और ये कह रहा है कि हमको इसलिए ये अलग नहीं करना चाहिए कि कोई और वो जो प्रोफेशन जो प्रैक्टिस हो रहे हैं प्राइमरीली फॉर ह्यूमन सर्विस, नॉट फॉर प्रॉफिट, जो ह्यूमन सर्विस के लिए प्रोफेशंस हो रहे हैं, वो जिस तरह की भी प्रोफेशंस हैं जिसके लिए ट्रेडिशन नॉलेज की जरूरत है, समय की जरूरत है, वो any useful calling for which a high degree of preparation has been needed and has been made, which is pursued in the spirit of service to the public, deserves the name of profession. तो वो बार बार इन चीजों पे आ रहे हैं कि आप बहुत इस तरह का एक स्टेटस का लैडर मत बनाइए, और इसलिए द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी will not tolerate the monopoly of the term by any privileged group, कि कोई privileged group कह दे कि हमारा ही काम जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन है और बाकी तो इस नाम के लायक नहीं है। तो बार बार वो यूनिवर्सिटीज को बुलाते हैं द ऑर्गन्स ऑफ सिविलाइजेशन। हम बहुत कम आजकल ऐसे शब्द सुनते हैं कि यूनिवर्सिटी इज द ऑर्गन ऑफ सिविलाइजेशन एंड द यूनिवर्सिटी इज होम ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवेंचर, बौद्धिक साहस का स्थल है ये। मतलब बहुत अभी भी हिम्मत मिलती है जब ऐसे शब्द सुनते हैं कि ये हमारे विजनरीज जो शिक्षा के बारे में एक रास्ता बना रहे थे, वो इस तरह से यूनिवर्सिटी को ये मानते थे। और इट हैज टू बी नर्चर्ड एंड वो कह रहे हैं ये होम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवेंचर जो है इनको नर्चर करना है जस्टिस से, और जो लीडर्स इनसे बने वो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से आए, और वो मैकेनिक्स हो, वो आर्टिस्ट हो, वो टेक्नीशियंस हो, वो पोएट्स हो, वो मतलब वो यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके ऐसे लोगों को ढूंढिए। वो कह रहे हैं कि जो खो गए हैं, जो हमारे इस समय में खो गए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना, टू
her persons of letters, of science, her poets and artists, के मतलब देश के artists, discoverers, inventors, जो intellectual pioneers इस civilization के रहे हैं, उनको ढूंढना और उनको यूनिवर्सिटी में लाना वो यूनिवर्सिटी का दायित्व है। आप सोचिए कि आज से कितना अलग है ये, और मुश्किल से 70 साल हुए कि ये जो एक परिकल्पना है कि यूनिवर्सिटीज की भूमिका क्या है और उनकी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि हम मरते जाएं और एडमिशन्स ना मिले और 100% कट ऑफ में ही हमारी जिंदगी निकल जाए, और वो आज का अलग मंजर है, और ये जिस मंजर की बात हो रही है इसकी पूरी दिशा हमें कुछ अलग दिखती है। तो टीचर्स के बारे में, क्योंकि आज हम जानते हैं कि टीचर्स के साथ क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि कितने टीचर्स पे किस किस तरह के सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं, कैसे मैनिपुलेटेड चार्जेस भी हो सकते हैं जो सामने आ रही है बातें। तो उसमें टीचर्स का ये कहते हैं कि एक तो सबसे पहले कहते हैं कि we must resist in the interest of our own democracy the trend towards governmental domination of the educational process. ये हमारा कमीशन कह रहा है, ये कह रहा है कि हायर एजुकेशन स्टेट का ऑब्लिगेशन होता है, हायर एजुकेशन को फंड करना, बट स्टेट एड देना मतलब ये नहीं है, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद स्टेट कंट्रोल ओवर एकेडमिक पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। कितना स्पष्ट लिखा है कि स्टेट का रोल क्या होना चाहिए, एंड वो कह रहे हैं कि द परस्यूट एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रूथ, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि ट्रूथ टेलिंग यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ही सच बताएंगी, वो ही एक स्टेट की मदद करेंगी, वो ही सरकार की मदद करेंगी देखने के लिए कि भाई डेमोक्रेसी है भी कि नहीं है, या जो सच असली जमीनी सच क्या है। तो दैट इज ऑल्सो द रोल दैट दे आर सेइंग intellectuals, academics, universities must. So they're saying that the pursuit and practice of truth, regardless of consequences, has been the ambition of universities, regardless of consequences. Professional integrity requires that teachers should be as free to speak on controversial issues as any other citizens of a free country. Free country, freedom. Teachers should be free to speak. An atmosphere of freedom is essential for developing this morality of mind. तो ये हमारी इस तरह की ईमानदारी अगर हमें चाहिए, इस तरह का एक ज़मीर हमें चाहिए, जो स्टेट को भी चाहिए, तो यूनिवर्सिटीज की भूमिका और स्टेट का ऑब्लिगेशन है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज को फंड करे, पर कतई भी ये ना हम सोचे कि स्टेट उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसका स्वायत्त रहना, और ऑटोनॉमी का यहाँ मतलब उस लिबर्टी से, उस फ्रीडम से है, तो उसका स्वायत्त रहना ही डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। ये कहा जा रहा है 48 में, और यही आप पढ़ेंगे इस किताब में भी कई 3-4 लेख ऐसे हैं जिसमें एकेडमिक फ्रीडम पे बात हो रही है। एक बहुत अच्छा लेख है प्रोफेसर भट्टाचार्य का जो एकेडमिक फ्रीडम वर्सेस ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं आज देखिए ये ऐसी अजीब दास्तान है कि आज तो ऑटोनॉमी के लिए आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ रहा है, मतलब ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बनने के लिए, जो कि आपकी मतलब आपका अस्तित्व होना चाहिए था कि आप ऑटोनोमस से तभी आप एक यूनिवर्सिटी हैं। जैसे कि वो न्यूजीलैंड एक्ट भी कहता है, जैसे हमारा कमीशन भी कहता है, पर वो कह रहे हैं कि आप तो ये डिलेमा ये है कि यू हैव टू अप्लाई, तो आपको गवर्नमेंट को अप्लाई कीजिए और फिर आप कंप्लाई कीजिए, और फिर आपको वो ऑटोनॉमी दे रहे हैं, वो बख्श रहे हैं आपको ऑटोनॉमी। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लेख है कि ऑटोनॉमी और फ्रीडम का क्या रिश्ता है, और बल्कि वो कह रहे हैं कि इसमें एक टेंशन रहना चाहिए, क्योंकि ऑटोनॉमी अब एक ब्यूरोक्रेटिक कॉन्सेप्ट जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक ब्यूरोक्रेसी डिसाइड कर रही है, और वो ज्यादातर आप देखेंगे कि अब जो नए रूल्स भी आ रहे हैं वो एक फिनेंशियल, वो एक ऑटोनॉमी का पर्दा है केवल, वो एक ऑटोनॉमी केवल इसलिए कि आपको फिनेंशियली आप अपने फंड्स वगैरह लीजिए और आप डिपेंड मत कीजिए स्टेट पे और स्टेट फंडिंग पे। तो वो ऑटोनॉमी अपने में एक पैराडॉक्स है, पर इंटरेस्टिंग है कि ये लोग स्वायत्तता और ऑटोनॉमी की जो बात कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट
इसको बार बार अंडरलाइन करके कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें इसका बिल्कुल इसको अंडरलाइन करके रखना पड़ेगा। और उनका पूरा उनकी उनकी जो रिपोर्ट है, इट्स ऑल अराउंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी तरह से 5 पिलर्स जो हैं, जो हम डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, जो उनके चैप्टर्स भी उसी तरह से चल रहे हैं उस कमीशन के। आज क्या है कि आज जब हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत दरकिनारे किया जा रहा है। आई मीन व्हेनेवर वी रीड, even in terms of the national education policy, the kinds of when it's talking about what should be the principles and what is important, it at one point it even talks of cleanliness. मतलब जो वो वैल्यूज की बात कर रहे हैं उसमें क्लेनलीनेस पहले आ जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना पहले आ जाता है, सफाई पहले आ जाता है। ऐसा नहीं कि सफाई जरूरी नहीं है, पर आप देखिए 25 वैल्यूज के एंड में जाके इक्विटी आता है, इक्वालिटी एंड जस्टिस आखिर में। इस पॉलिसी को छान के देखिए, जहां जहां वैल्यूज की बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ह्यूमन वैल्यूज आ जाते हैं। जान के डिलिबरेट अटेम्प्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा आप साइड में कीजिए, और आप जब पढ़ेंगे पॉलिसी तो हमें स्पष्ट होता है, और इसलिए चिंता होती है कि एक राइट टू एजुकेशन हमारे लिए, जो एक 70 साल बाद संघर्ष करके लोगों का जमीनी स्तर पे देखते हुए कि लोग किस तरह शिक्षा में, हायर एजुकेशन तो क्या, मिडिल का लेवल भी एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए, और कि सरकारें कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, टीचर्स की जगह शिक्षा मित्र लगा देते हैं, इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस हैं, इसलिए जाके एक राइट टू एजुकेशन आया था। पर यूनिवर्सिटी में भी अब ये हाल है। आप देख रहे हैं कि हमारी आधी जो वैकेंसीज है फैकल्टी की, वो एडहॉक है। आज भी क्या सिचुएशन है कि अब जिस तरह से ये कोर्सेज, नए कोर्सेज बन रहे हैं जिसमें कि एग्जिट एंड एंट्री, लैटरल एंट्री, जिसमें आप एकेडमिक ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो ये भी किताब में कई जगह इस तरह की भी इश्यूज डिस्कस्ड है कि जिस तरह के कोर्सेज, क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज बन रहे हैं, उसकी क्या चैलेंजेस हैं। एंड इसलिए एक कंप्लीट जो डोमिनेशन है एक मैनेजरियल, पब्लिक मैनेजरियल पर्सपेक्टिव का एजुकेशन को उसमें डालकर उसका एक मॉडिफिकेशन देखना, so that goes against any principle of inclusion, because then you're accepting stratification. And the most worrying fact in our policy today is, and खासकर इस कोविड के दौरान और भी ज्यादा हमको चिंता होती है कि वहां जब कोविड के दौरान हमारी पॉलिसी आई, तो उसमें एक बार पूरी पॉलिसी में वो शब्द पैंडेमिक आया है। और वो कहाँ आया है? वो सेक्शन 24 में, जो ऑनलाइन और एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। So now again this stratification, and the policy clearly says that good quality higher education will have a natural path only through online and distance education. तो ये भी जिसपे अपूर्वानंद कंटिन्यूसली लिखते भी रहे हैं इस मुद्दे पे, अभी भी जब यूजीसी ने एक ब्लेंडेड ऑप्शन दे दिया कि आप हर कोर्स में 40% अलाउ करेंगे, कि आपका हर कोर्स का 40% ऑनलाइन हो सके। तो इसका क्या मतलब है? ये ऑनलाइन कहने से क्या मतलब है? हम जान रहे हैं, अभी हम सर्वेस कर रहे हैं कि कितने लोगों के पास केवल नाम के लिए भी फोन थे या कनेक्टिविटी थी, उससे एजुकेशन नहीं होती है। खासकर स्कूल एजुकेशन तो मानते ही नहीं है हम कि वो कभी ऑनलाइन हो सकती है। और अगर if students who are coming from backgrounds where they don't have support at home, they're coming from disadvantaged backgrounds or backgrounds that have for long really been kept out of these institutions which have controlled in terms of who comes in and control the notions of what how they are selecting and how they are testing. For that then to say कि नहीं, अब ये मौका भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यूनिवर्सिटी जैसे कि इस किताब की भूमिका बता रही है कि इट इज नॉट जस्ट टू गेट अ डिग्री, इट इज नॉट जस्ट टू स्टे स्टेटिस्टिक्स कि हमारे कितनी रैंकिंग आ गई या हमने कितने पर्चे तैयार कर लिए, but it is also to see this nation making, how is it changing, how is the notion of this nation, because सबसे पहली बात हम याद रखें कि हमारे 1947 कॉन्स्टिट्यूशन के 50 में कॉन्स्टिट्यूशन आया है, पर हमारी आजादी के बाद
why is it and how is it that we really got a universal franchise? सबको वोट करना पहले दिन से ये माना गया था। अंबेडकर ने भी कहा था, गांधी ने भी कहा था वेरी क्लियरली, अनअडल्ट्रेटेड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। हम ये जो बाकी देशों में भी हुआ है कि महिलाओं को यूरोप में भी 1950s के बाद मिला, ब्लैक्स को आपको मालूम है अभी तक किस तरह से वो the whole issue of whether there is freedom or equity or not, and how Black Lives Matter कितना संघर्ष चल रहा है। तो यहाँ ये बात थी। And interestingly, Ambedkar, who had studied in Columbia University and was very influenced by John Dewey, जो कि एक जाने माने political thinker भी है और educational thinker भी है। तो उनकी थॉट से जब वो इन्फ्लुएंस हुए थे तो उन्होंने ये बात सामने रखी थी कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है डेमोक्रेसी के लिए। तो उन्होंने कहा कि we can think of equity, but we know that in our society we have segregation. Caste is a major issue. We hardly find enough opportunities where people will be living and understanding the other, क्योंकि अगर democracy chahiye, so you have to really understand. You don't have to be othering, but how do you have an inclusive idea of democracy? तो उन्होंने कहा डेमोक्रेसी चलेगी नहीं है, सिर्फ वोट देने का मतलब नहीं है, but how will associated living, the principle of living and working together हमारे जिंदगी में नहीं हो रहा है तो वो शिक्षा में होगा। तो उन्होंने शिक्षा को देखा था ऐसा साइट जहाँ पे children from young age, university, older students from at that age will come together, come from different experiences, from their own areas, bring and then debate, deliberate on issues, and that will make them actually forge and make and construct a democracy, because associated living is important. You cannot talk of a democracy otherwise. So that's why for us, education, whenever we are designing anything in education, we think of the constitution. We think of will that syllabus, will that textbook, will that course actually help us take these issues further, or will it not? And I think that is important. वो इसी की भूमिका अपूर्वानंद ने बांधी है और कहा है कि ये जो अब हम जैसे पिछले 10-15 साल में हम वाकई ही यूनिवर्सिटीज में एक अंतर देख रहे हैं। We are seeing the kinds of aspirations, we are seeing how people are reaching higher education. For them it is crucial to be in a brick and mortar institution. वो ऑनलाइन से नहीं होता, अलग थलग बैठ के एजुकेशन होती नहीं है, पर ये जो मिक्सिंग की बात है, ये जो एक नैरेटिव की बात है, जो कि इस नेशन को कैसे हम एसोसिएटेड लिविंग से जोड़ के एक वास्तव में एक डेमोक्रेसी का एक डेमोक्रेसी की शक्ल दे रहे हैं, उसके लिए वो स्थान चाहिए, वो साइट चाहिए, वो लोग चाहिए, उस तरह का मौका चाहिए कि आप आपके कोर्सेज में, आपकी शिक्षा में ऐसा मनन हो, ऐसा चिंतन हो। इट्स नॉट जस्ट running after competing marks, this thing, but it's thinking, reflecting, discussing, questioning, interrogating. जैसे उन्होंने कहा है कि the morality of the mind and the courage to question. So I leave it here because आप लोग इस पे और बातचीत करेंगे, and we would also like to hear Apurvanand talk about his book. Thank you. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot for sharing your thoughts and also giving us that historical perspective, which sort of was instrumental in bringing us to where we are right now. अब इसके बाद में जो है हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ में जो हमारे आज दूसरे एक्सपर्ट हैं वो है ब्रदर मुजाहिदुल इस्लाम। मुजाहिदुल इस्लाम साहब का इंट्रोडक्शन ये है कि आप अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी टीम का जो है हिस्सा है। ही इज एन एडटेक स्पेशलिस्ट और बहुत इंटरेस्टिंग आपकी फील्ड ऑफ वर्क है। आप टेक्नोलॉजी, मीडिया, एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग, ये कहना चाहिए कि तमाम जो ये कहना चाहिए कि डोमेन्स हैं, इसके क्रॉस रोड्स पर काम करते हैं, जहाँ पर ये तमाम चीज़ें मिलती हैं, उस पर जो है आप काम करते हैं और मुख्तलिफ जो है एरियाज में आपने जो है रिसर्च किया है, चाहे वो
टॉयज यानी खिलौनों का इस्तेमाल जो है किस तरीके से जो है वो एजुकेशन में किया जा सकता है और उसी तरीके से दूसरी जो तमाम चीज़ें हैं इस पे आपकी स्टडी रही है। तो हम मुजाहिद भाई को जो है खुशामदीद कहते हैं। आपके इंट्रोडक्शन में एक चीज़ ये भी शामिल है कि he was a member and member of Central Advisory Council of SIO Students Islamic Organization of India. तो मुजाहिद भाई खुशामदीद एंड प्लीज टेक इट अप फ्रॉम हियर। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस किताब को पढ़ी और मुझे बहुत मज़ा आया इसे पढ़ने में। और इट वाज लाइक कि बहुत सारी बातें जो हम सोचते हैं, it was actually getting reflected by reading this book, different articles of the book. It talks about something which is very near to our heart, and that is university, in which we are at present. We all are somehow associated, engaged. तो उस हिसाब से बट रमीश जब कह रहे थे कि ये 2014 से पहले होता, और तो मतलब आई वाज एक्चुअली रिमेम्बरिंग वन one share which has come in this book actually, and I really enjoyed you know so घर में था क्या गम के तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरत तामीर गारत करता। तो मतलब आई वाज एक्चुअली कि एक हसरत तामीर जो है वो है, तो इसलिए वो रहेगी, और इसलिए वी विल कीप। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये 2014 में हुआ है। सो यू विल व्हेन यू विल रीड दिस आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ दिस बुक, यू विल सी कि इससे पहले भी होता रहा है, और बहुत सारे देश में बहुत सारे जगह पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये सब होता रहा है। तो इट्स नॉट समथिंग विच मतलब कि इससे डील करते रहना पड़ेगा हमें। किससे डील करना पड़ेगा, ये जो सवाल है, आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, एकेडमिक फ्रीडम, ये जो सवाल है, इससे हम सबको डील करते रहना पड़ेगा। सो फिर मैं मतलब कि जब आई वाज एक्चुअली रीडिंग दिस book, so I starting में I came across this line is an increased awareness of demands of society forcing the dons to come out of the ivory towers that universities had become. Are universities being brought closer to the rest of society, and is the academic community grumbling and protesting because this belated awakening is demanding accountability from the universities for the money that taxpayers are spending on them? मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए, और जिसके नतीजे में हो सकता है कि एक ट्रिगर रहा कि इस तरह की किताब लिखी जाए, यानी इस तरह की किताब का कंपाइलेशन किया जाए, दैट इज इंटरेस्टिंग। लेकिन ये हुआ क्यों? तो मतलब उस वक्त जब कन्हैया का एपिसोड चल रहा था, उस टाइम में लोग यही कह रहे थे कि इतने दिन तक यूनिवर्सिटी में कर क्या रहा है ये। सो ये जो सवाल है, इस सवाल तक आम जनता इस सवाल तक आई कैसे? और फिर मतलब कि ये कहना कि इट्स बहुत सारी बातें उसको लेकर के ये समझ नहीं पाना कि यूनिवर्सिटी में मतलब हम ऐसे सवालों का मजाक उड़ा रहे थे कि ये कैसा सवाल है, बहुत सारे लोग। लेकिन ये सवाल तक पहुंचा कैसे ये देश? तो मतलब ये क्या ये इस तरफ दर्शाता नहीं एक्चुअली द फेलियर ऑफ द यूनिवर्सिटी? तो मतलब पूरे देश में लाइक बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन हमारे लिए ये सवाल है। मैं इको हो रहा हूँ, इज इट बिकॉज ऑफ हेलो? ना मुझे वो आई थिंक प्रोफेसर अनीता रामपाल का म्यूट रह गया था, अनम्यूट रह गया, तो उसको हटा। ओके हाँ। तो ये जो है ये जो सवाल है कि, और ये इस सवाल से थोड़ा बहुत ये किताब डील करती है कि एक्चुअली यूनिवर्सिटी का आइडिया क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और हाउ वी हैव फेल्ड टू। और इसलिए मुझे जो सबसे ज्यादा मजा आया जिस आर्टिकल को, जिस चैप्टर को पढ़ने में, वो था मोहम्मद सज्जाद का, जिसमें उन्होंने मतलब कि बहुत सारी ऐसी बात की हैं जो कि मेरा भी ताल्लुक बिहार से है और मैं जिला स्कूल में पढ़ा हूँ। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे उठाते हैं वो,
और हमेशा मतलब कि ये सवाल हमारे लिए रहा। और ये जो फ्रीडम की बात की जाती है तो लाइक मैं अपने एक्सपीरियंस में मैं एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने अपनी तालीम हासिल की। मैंने बीटेक किया वहाँ पे। तो वहीं पे जब मैं फर्स्ट टाइम व्हेन आई एंटर्ड दैट प्रेमाइस ऑफ द कॉलेज, उसी वक़्त पेपर पे जो सिग्नेचर लिया जाता है स्टूडेंट से, उसमें ये सब लिख दिया गया था कि यू आर नॉट सपोज्ड टू प्रोटेस्ट, यू आर नॉट सपोज्ड टू क्रिएट एनी ग्रुप, दिस दैट, वो सब ले लिया गया था उसी वक़्त। सो फ्रीडम था भी नहीं। और आई रिमेंबर और ये 2002 की बात है। तो और मतलब और आई आल्सो रिमेंबर वन इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन माय फाइनल ईयर कि व्हेन अ स्टूडेंट was bullied by the professor in a seminar. So because it was for the first time the student was delivering a seminar, or was starting में he was getting bullied, so he lost his confidence. So I was sitting there and I protested. And I protested and stood up and I told कि भाई this is not how you should deal with the student who is delivering the seminar for the first time. Or then I went to the HOD of my डिपार्टमेंट एंड उससे जब मैंने कहा कि सारे स्टूडेंट्स को लेकर के गया और कहा, तो मतलब इट वाज रिजॉल्व इन वन वे, बट मतलब कि रिजॉल्व इन द सेंस कि हाँ ठीक है ऐसा नहीं होगा, बट उसका खुमियाजा मुझे बाद में भुगतना पड़ा जब उस प्रोफेसर ने मुझे जो है वो मार्क्स बहुत कम देना शुरू किया। और फिर जब मैं उसके पास गया ये पूछने के लिए, तो उसने मुझे यही बोला कि यू आर and that day I was actually I used this word, it is not the protocol of the seminar that you keep bullying a student in between like this. You ask the questions at the last of this, after the presentation is over. He told me, you were teaching me seminar protocol and I am teaching you blue book protocol. Blue book is the test papers. तो मतलब ये तो मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, ये है रहा है। अब सडनली मतलब कि इस बात का एहसास जो है वो हुआ, और कुछ लोगों को भी क्या या ये मतलब कि पहले से इस दर्द को तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, कोई बोल नहीं पा रहे थे, फिर भी चलो। सो दैट इज इंटरेस्टिंग कि भाई किसी ने इसको कुछ लोगों ने इसको मिलकर के कंपाइल किया। फिर कुछ बातें हैं जो मतलब कि इम्पोर्टेंटली हाईलाइट होती है किताब से, वो है एक तो मतलब कि बहुत ज़्यादा छाई जो बात है वो फ्रीडम की है, तो जिस पे मैंने आपके पास सामने एक अपना एक्सपीरियंस रखा, ऑटोनॉमी और फ्रीडम की बात। तो यूनिवर्सिटीज़ जो कि मतलब देयर आर टू काइंड्स ऑफ, यानी एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसमें किस तरह का फ्रीडम होता है पॉसिबल। तो ये मतलब कि आप जो कि बहुत 90s के बाद से ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मतलब रैम्पेंट, खासतौर से इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब में दिखने लगे। और उसके बाद फिर यू विल सी कि वहाँ पे कोई उस तरह का कोई फ्रीडम स्टूडेंट्स के पास होता नहीं है। फिर उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो उसमें तो एक टेंशन रहता है हमेशा, और ये किताब में भी आप देखेंगे कि द स्टेट और प्राइवेट, सो मतलब कि एक तरफ कॉर्पोरेट है, न्यू लिबरल जो ये है, तो उसका या मार्केट है, उसका एक टेंशन है, वो कैसे मतलब कि ड्राइव करता है यूनिवर्सिटीज को और इंस्टीट्यूशंस को, और फिर स्टेट कैसे ड्राइव करता है। और स्टेट सिर्फ 2014 के बाद ही ड्राइव नहीं कर रहा है, बस उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़े हैं। इस एक आर्टिकल आपको इसमें एक चैप्टर मिलेगा जिसमें ऐसा बहुत सारे इंस्टेंसेस जो इससे पहले भी इमरजेंसी के टाइम में, उस टाइम में भी हुआ है। तो डिसेंट की बात है, प्लूरलिज्म या डायलॉग की बात है, मतलब कि विच यू कैन एक्चुअली डिराइव फ्रॉम दिस बुक। नॉलेज कल्चर कैसा होना चाहिए, उस पे बात हुई है। और मतलब कि जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एट प्रेजेंट जो हम सब पे लागू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कि जब हम कॉर्पोरेट को इतना ये करते हैं, और मतलब कि एट प्रेजेंट वी विल हैव टू सी टेक्नोलॉजी ड्राइविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड what and it's actually मतलब कि इसने completely it has permeated और it has got into, घुस चुका है हर जगह। सो यूनिवर्सिटी में भी ये घुस चुका है। सो और ये जो टेक्नोलॉजी मतलब एट प्रेजेंट है वो मार्केट ड्रिवन है। तो जैसे मतलब कि हम मार्केट इसकी बात करते हैं, तो मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वी ऑल when this book at one instance talks about Orwellian,
I actually see more as Huxleyan, because we all are actually, हम सब ने हथियार डाल दिया है, और we are actually using technology in such a way that we all have become the slaves of technology. And the reason I'm saying this is because, at present the discourse around education, online education, is so much around it, and in actually even the spaces which are now being used by the academicians are those spaces which are actually there's a lot of questions on those spaces. Who drives those spaces, and is it like is it really help? तो मैं उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट मेरा सवाल बस यही है, मैं जो पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, यही रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ तो ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टेट की हेजेमनी, कॉर्पोरेट की हेजेमनी, लेकिन दूसरी तरफ हम खुश हैं हथियार डालकर, और हमें पता भी नहीं। तो इसलिए मैं हक्सलियन बोल रहा हूँ कि वी आर हैप्पी विद व्हाट वी आर डूइंग थ्रू द टेक्नोलॉजीज व्हिच वी ऑल आर यूजिंग अराउंड अस इन आवर इनफॉर्मल स्पेसेस और फॉर्मल स्पेसेस। और सो यूनिवर्सिटीज को भी उसी तरह, मतलब कि जब आगे बात होती है कि हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटीज को अडेप्ट, मतलब सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? तो ये भी बात आई है इस किताब में कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वीडियो मतलब वीडियो के थ्रू, वीडियो लेक्चर जैसे होते हैं, तो उसमें अगर उसमें क्या होता है, तो मतलब कि इट कैन बी ऑफ डिफरेंट वेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेडागॉजी कैन हैपन इन अ वीडियो, बट अगर आप वही हैं जो फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर में हैं खड़े हुए, और वही वीडियो में भी हैं, या वीडियो से वही मिल रहा है हमको, तो हम आपके पास आए क्यों? मतलब इस ब्रिक एंड मॉर्टर जिसका रोमांटिसाइजेशन हम, मतलब कि एक तरफ मैं इससे इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि हम हैं ही वही, कर ही वही रहे हैं जो कि वीडियो में भी मिल रहा है हमको, तो क्यों ना वीडियो रिप्लेस कर ले हमें। और इससे ये मतलब नहीं बनता है कि वीडियो को मैं, मतलब कि अच्छा कह रहा हूँ कि बहुत, बट यहाँ मतलब ये बात ये है कि यूनिवर्सिटीज हैव टू थिंक अबाउट, जब ओरैलिटी की बात होती है, टेक्सचुअलिटी, टेक्स्ट की बात होती है, तो डिजिटल के बारे में भी सोचना पड़ेगा और उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। तो अदरवाइज मतलब कि होगा ये कि एक तरफ देयर विल बी अ कंट्राडिक्शन, एक तरफ यूनिवर्सिटी के जितने लोग हैं जो कि इन सारी चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उसके गुलाम बन बैठे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो दे डोंट वांट टू अडेप्ट। सो ये हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगा। तो एक चीज है, उसी तरीके से मतलब कि मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि साइंस जिस तरीके से मतलब कि इस देश में हो रहा है या पूरे दुनिया में हो रहा है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर जगह पे साइंस इज ड्रिवन बाय अप्लाइड साइंस, एंड दैट इज ड्रिवन बाय मार्केट। सो अब यह इस पे भी आंख जो है हमारी उस वक्त खुलती है, या हम उस वक्त बात करना शुरू करते हैं जब मतलब इट बिकम स्यूडो साइंस। तो इससे पहले उस तरीके का प्रोटेस्ट या उस तरीके का मूवमेंट या उस तरीके की बात बहुत कम हो पाई है, जो कि मार्केट ने किया है हर जगह, साइंस के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ, हर जगह। तो और फिर पैदा क्या हो रहा है, वो आप दूसरी तरफ देखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली बीइंग क्रिएटेड। तो मुझे लगता है कि और भी मतलब कि जो बात ये है कि मतलब यानी एक चीज जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, जिस जो जो कि यूनिवर्सिटीज के स्पेस के एक तरफ, तो मतलब कि जो सज्जाद क्वेश्चंस के यूनिवर्सिटीज कितने रेलेवेंट हैं, तो मतलब कि कोई कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कोई भी स्ट्रीम ले लीजिए, तो सवाल ये उठता है कि क्या आप अपने लोकल प्रॉब्लम्स को समझते हैं? क्या आप अपने लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं अगर टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं आप? तो मतलब वो सवाल ये उठाता है कि आईआईटीज़ ने क्या कुछ इस तरह के एनर्जी मतलब लो एफिशिएंट, लो एनर्जी चीज़ें बनाई हैं जो कि इंडियन कंडीशंस को बस मतलब इट जस्ट लुक्स प्रोटोटाइप में आता है, बट उसके उससे आगे कुछ नहीं हो पाता है। तो मतलब एयर कंडीशन या आर्किटेक्चर, घर का जो आर्किटेक्चर है, वो ऐसा होता है कि मतलब कि बहुत गर्मी आप बढ़ा लेते हैं, उसका मटेरियल ऐसा यूज़ करते हैं, अब फिर आपको एयर कंडीशनर लगाना पड़ता है उसको ठंडा करने के लिए। सो दिस इज़ द स्टेट ऑफ साइंस। तो इन दिस का मतलब थ्रू लाइक यूनिवर्सिटी क्या प्रोड्यूस कर रही है, मतलब दे आर द बेस्ट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो सवाल है, और यही सवाल सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में भी आ जाएगा, क्योंकि आप जो है वो अपने
समाज को इकोनॉमिक्स में जैसे एग्जांपल देते हैं कि बहुत एक ज़माना था जब लोगों को जाना पड़ता था और जाकर के गिव्स एन एग्जांपल कि रूरल इकोनॉमी को समझना पड़ता था, विलेज की इकोनॉमी को समझना पड़ता था। तो ये चीज़ जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट को क्या आज वो करते हैं या कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये कि जो प्रोडक्शन है मतलब कि मतलब कि जो एकेडमियन जो यूनिवर्सिटी जो प्रोड्यूस की है नॉलेज या करती रही है, वो ज़्यादातर ऐसे भाषाओं में हुआ है कि भाई ज़ाहिर है मतलब कि या तो इंग्लिश में हुआ, वर्नाक्युलर में बहुत कम हुआ है। चूँकि वर्नाक्युलर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्रिएट हुई है वो है इंतहाई मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसका हम अभी एट प्रेज़ेंट बोलेंगे जाहिलाना है। सो लेकिन वही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ और उसी ने लोगों का माइंड चीज़ जो है वो लिख ही नहीं पाई, एंगेज ही नहीं कर पाई समाज के साथ, सोसाइटी के साथ। तो दिस इज़ द फेलियर टुवर्ड्स व्हिच मतलब कि दिस मतलब जैसे ही आप ये आर्टिकल पढ़ते रहे मतलब डिफरेंट चैप्टर्स आप पढ़ते जाएँगे तो आपको ये बात रिफ्लेक्ट होती जाएगी या सोचते जाएँगे कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? तो ये चीज़ जो है मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। अ, इंस्ट्रूमेंटाइज़ेशन ऑफ नॉलेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे और ये मतलब कि वी कैन कनेक्ट इट विद कि नॉलेज का कल्चर कैसा होगा। नॉलेज का कल्चर जैसे लियोटार्ड बोलता है कि भई इट विल एक्चुअली बी परफॉर्मेटिविटी होगी उसमें, परफॉर्मेंस ड्रिवन हो। मतलब हर चीज़ जो आप करेंगे उसका उसका एक एस्पेक्ट होगा। अब यूनिवर्सिटी का भी जो एक्रेडिटेशन होता है, ऑडिटिंग होता है, ये सब क्या होता है? और मतलब उसको क्वांटिफ़ाई किया जाता है, हर चीज़ मतलब क्वांटिफ़ाई किया जाता है और उसको और प्रॉब्लम ये है कि उससे यानी मार्केट जो है वो मुझे लगता है मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मार्केट वर्क मैं कुछ नहीं समझता हूँ लेकिन मुझे जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि मार्केट लॉजिक जो है इज नॉट टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट कोई भी सिस्टम एफिशिएंट नहीं हो सकता मार्केट के लॉजिक से इट इज एक्चुअली टू मिल्क इट एज मच एज पॉसिबल टू कुछ एलिट्स को उससे फायदा हो जाए तो ये जो लॉजिक अप्लाई होगा यानी क्वांटिफाई करने का हर जगह एवरीवेयर यानी इवन इन मार्केट तो वो बहुत ज्यादा जैसे कंपटीशन होगा मार्केट में तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी अच्छी होगी ये चीज इसी को आप जो यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा तो जाहिर है क्या हो रहा है आप देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि अब ये होता ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस बहुत कम रह जाते हैं और जब वहां पे ये सब चीज दिखता है तो फिर ये बातें आती हैं ये बातें डिस्कोर्स में आती हैं यानी उससे पहले अब यूनिवर्सिटीज की हालत क्या है एक तरफ यूनिवर्सिटीज जो है वो अच्छे मतलब बहुत कम अ वेरी स्मॉल मिनिस्क्यूल ऑफ यूनिवर्सिटीज जो कि कुछ अच्छा काम कर रही है अदरवाइज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वहाँ हो क्या रहा है तो वहां पे जो बात कहते हैं उनका नाम मुझे याद नहीं रहा बट मीडियोक्रिटी एंड बोर्डम है और मतलब कि पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है और कोई प्रोजेक्ट भी अगर लाना है तो एक प्रेशर है यानी पेपर भी लिखना है तो वो इसलिए क्योंकि हमको जो है वो बनना है हमें मतलब कि आई हैव टू गो अप द लैडर प्रोफेसर बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उसमें हमारा सैलरी बढ़ेगा तो ये है मामला तो जाहिर है होगा क्या सो एंड दिस इज द हिस्ट्री मतलब दिस इज हाउ यूनिवर्सिटीज हैव बीन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया तो फिर उसके बाद एकेडमिक सिनिसिज्म एंड तो उसको लेकर के फिर हम लोग जो लेमैन हुए जो ज्यादातर जो तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इन लोगों का काम क्या है मतलब बस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं पेपर प्रेजेंट करते हैं तो हम वी स्टार्ट टेकिंग देम एज फिर उसके बाद नेपोटिज्म है और आइडियोलॉजिकल अटैक एंड अब्यूज है और मार्केट फोर्सेस एक्सेलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी वाली बात है तो मार्केट फोर्सेस पे मैंने मतलब कुछ बातें आपके सामने रखी हैं जो इस किताब से रिफ्लेक्ट होती हैं तो और नेपोटिज्म तो मतलब एक ऐसा इस लेवल का है कि आपको पता है कि बिहार में जो है वो यानी हाई स्कूल्स जो है खुले नहीं बल्कि लोगों ने बनाए और अपने सारे रिश्तेदारों को उसमें डाल दिया और उसके बाद फिर पता ये चला कि फिर उसको गवर्नमेंट ने ले लिया सो दैट्स हाउ इट इज और फिर यूनिवर्सिटीज के बारे में एक एग्जांपल ही गिव्स अबाउट अनदर प्लेस फ्रांस आई थिंक आई डोंट नो या जर्मनी जहाँ पे 25% जो लोग फैकल्टी थे दे वर एक्चुअली रिलेटिव्स ऑफ ईच अदर सो इस तरह का नेपोटिज्म और इस तरह का नेपोटिज्म जो है वो हमारे यहाँ भी है तो अब ये बात ये कि जैसे सरकार जो अब मैं मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा उस बात को रिपीट नहीं करूँगा जो कि हमारे यहाँ होती रहती है कि फ्रीडम छीन रहा है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। हमें जो है मतलब कि इस किताब से मुझे लगता है कि एकेडमिशियंस, यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग हैं, उन लोगों को सेल्फ रिफ्लेक्ट करके, इंट्रोस्पेक्ट करके ये सोचना पड़ेगा कि हम मतलब कि किस हद तक हम इस हालत के ज़िम्मेदार हैं। और फिर उसके बाद हमें जो है वो उससे फिर आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। कुछ बातें उसको भी लेकर के यहाँ पे हैं इस किताब में। तो
मॉडल यूनिवर्सिटीज की बात है। मॉडल यूनिवर्सिटीज में कुछ यूनिवर्सिटीज अब जिसको मतलब दुनिया का बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाना है, या इंडिया में जेएनयू तो एक ही है और इस तरह के कुछ ही यूनिवर्सिटीज होंगे जहाँ जिसको मतलब कि आप कहेंगे दे आर गुड, अच्छे हैं। और उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनको बस उनको एक्चुअली मतलब इट्स लाइक वेरी मतलब हायरार्किकल, जो फ्यूडल हमारे यहाँ सिस्टम है या कास्ट का जो हमारा पूरा सिस्टम है, तो हर चीज में हम उसको मतलब ये चल कंटिन्यूड है, तो हर चीज में हम उसको बनाना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे वो प्लेन में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में हो। तो उसमें भी मतलब कि जो अपर कास्ट यूनिवर्सिटीज होगा वो जेएनयू होगा, और जो लोअर कास्ट होगा उसको कोई मतलब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत, उसको खत्म ही दो, उसको बर्बाद ही होने दो। तो इस तरीके का पूरा एक है, और उसमें सिर्फ गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम एज अ सिटीजन जिम्मेदार हैं, एकेडमिशियंस जिम्मेदार हैं, और मार्केट फोर्सेस ऑफ कोर्स वो हर वक्त ये टेंशन, मैं ये कहता हूँ कि ये टेंशन तो रहेगा, उसमें हमारा क्या रोल है दैट इज इम्पोर्टेंट। तो विथ मतलब कि हसरत तामीर को जिंदा रखते हुए वी हैव टू कीप फाइटिंग। तो मेरे ख्याल से university should not be yani that kind of an ivory tower which is detached from the society, and which is एक तरफ ये है कि there is no interest in anything, दूसरी तरफ ये है कि पेपर खूब लिखा जाए, इसलिए कि आई हैव टू, और मतलब जो वर्क हो रहा है इट हैज टू बी पब्लिश्ड, एक ऑब्सेशन, एक फेटिश जो है पब्लिश का होने का, और उसकी वजह से यू नो किस तरह का करप्शन क्रीप करता है। तो यूनिवर्सिटी का जाहिर है जो ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से so Pankaj Chandra actually defines universities in a beautiful manner, and I'll end over this. He talks about universities which helps in building perspective, builds intrinsic values of judgment and love for lifelong learning. So this is what university should be. And मेरे ख्याल से एक चीज जो हम लोग रिपीट करते रहते हैं कि इट इज एक्चुअली जो बात फिर दूसरी जगह पे भी आई है, बिल्डिंग की यानी कल्टीवेशन की, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, और जेन्युइन न्यू नॉलेज जिससे प्रोड्यूस हो सके, ये सब ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सिटी का, ये सब होना चाहिए ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी का। और इसीलिए यूनिवर्सिटी जो होगा वहां पे इट विल बी ए फ्री स्पेस फॉर डेलिबरेशन, डायलॉग, एक्सप्रेशन, फ्री थिंकिंग। ये चीज हो अगर यूनिवर्सिटी में है, और यूनिवर्सिटी मतलब कि फिर उस लेवल पे भी हम जाएं कि अगर हमें लगता है कि हमें ये चीज नहीं मिल पा रहा है, तो वेयर वी हैव टू फाइंड स्पेसेस, जो सीडीएस की एक छोटा सा चैप्टर है वो, जो कहती है कि अदर वेज टू कनेक्ट विद पब्लिक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी। एक ये कि हमारा कैरेक्टर लाइक किस तरह बना है, हम नॉलेज किस तरह प्रोड्यूस किए, ऑब्जेक्टिव हमारा एंड क्या है, एंड पब्लिश करना है, एंड सीखना है, एंड कैरेक्टर कब बनना है, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, या एंड जो है परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, और उसका क्वांटिफिकेशन और उसके थ्रू मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए, या ज्यादा से ज्यादा मतलब कि हमें प्रमोशन मिले और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिल पाए, और हम ज्यादा सो ऑल दोस थिंग्स। तो ये जो मसला है, तो अगर जेन्युइनली हम सोचे यूनिवर्सिटी के आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी को, तो मेरे ख्याल से मतलब कि असल ऑब्जेक्टिव यही है कि आला अखलाक की तामीर, और उसके अराउंड, और उसके लिए जो चीज इम्पोर्टेंट है वो है कि आदमी जो है मतलब वहां पे उसको फ्रीडम ऑफ डिसेंट हो, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग हो, और एक ऐसा स्पेस हो जहाँ पे सब कुछ हो सके, तभी एक खुला स्पेस हो उस तरह का, और फिर उसके बाद ही नॉलेज बन सकता है, नॉलेज प्रोड्यूस हो सकता है। मैं थोड़ी बात, मैं इस किताब का हक अदा करना इतनी देर में मुश्किल है, कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इंशाल्लाह फिर हम जब हम जो प्रोफेसर अपूर्वानंद को सुनेंगे तो विल गेट टू नो मोर। जी जी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह ब्रदर मुजाहिदुल इस्लाम, आपने बहुत अच्छे से जो है ये कहना चाहिए कि एक तो मतलब ये चीज़ है कि आइडियल सिचुएशन, जो मतलब प्रोफेसर अनीता रामपाल की टॉक में जो चीज़ हमने सुनी कि मतलब व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड यूनिवर्सिटी स्पेशली इन इंडिया, और बट इन जनरल क्या आइडिया है और क्या होना चाहिए, और उसको कॉन्ट्रास्ट करते हुए जो है आपने जो ग्राउंड रियलिटी है, आप खुद भी ग्राउंड के आदमी हैं, तो वो आपने पेश किया कि किस तरीके से वो आइडिया जो है कहीं न कहीं सबटाज होता है, या फिर ये कहना चाहिए कि पूरा नहीं हो पाता है। तो उस पर जो है ब्रदर मुजाहिद ने रोशनी डाली है।
एक एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है कि अभी भी तिश्ना है, एंड वी शुड पॉन्डर ओवर इट, कि कैन वी रियली आइसोलेट यूनिवर्सिटी और प्लेसेस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि भले से जो है वो एक कहीं ना कहीं फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस एक सेक्लूडेड स्पेस बन जाती है, लेकिन क्या आप वाकई जो है उसको दीगर सोसाइटी से जो है आइसोलेट करके देख सकते हैं? और क्या ये बात सही नहीं है कि आपकी बाकी की सोसाइटी जिस तरीके से रहेगी, उसी का कहीं न कहीं एक रिफ्लेक्शन जो है आपकी यूनिवर्सिटीज़ और जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग है, उस पर होगा। तो मेरा सवाल यही है कि कैन वी रियली टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी इन आइसोलेशन? तो दैट्स अ क्वेश्चन, एंड बट I'll leave it to the author who is going to be our next speaker. तो प्रोफेसर अपूर्वानंद के ताल्लुक से वैसे बहुत कुछ मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, और आपने जो है इनके लेख पढ़े होंगे, आपने जो है इनको टीवी पर देखा होगा। आप एक कमेंटेटर हैं सोशो पॉलिटिकल जो ये कहना चाहिए इश्यूज होते हैं, इस पर अक्सर आपके व्यूज़ हमको देखने, सुनने और पढ़ने मिलते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये आपकी पहली किताब नहीं है। ही हैज़ ऑथर्ड अदर बुक्स एज़ वेल। 2 हिंदी की किताबें, सुंदर का स्वप्न और साहित्य का एकांत, जो इससे पहले छप चुकी है, एंड ही हैज़ आल्सो एडिटेड अनदर बुक इन इंग्लिश व्हिच इज़ एजुकेशन एट द क्रॉसरोड। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है, और इसके अलावा जो है एक बड़ा ये कहना चाहिए कि आपका स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन है, जो अगेन ये कहना चाहिए कि आपकी भी जो पर्सनैलिटी है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सनैलिटी है। आप वैसे तो हिंदी के प्रोफेसर हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर जो है ये कहना चाहिए कि आपने काम किया है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई इनवाइट प्रोफेसर अपूर्वानंद टू प्रेजेंट हिज थॉट्स अबाउट his book and what other speakers have critiqued and commented on his book. Professor Pudhan. बहुत शुक्रिया आपका और सारे दोस्तों का जिन्होंने किताब पर अपनी बात रखी, और मुझे जो बातें कही गई हैं उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और ये बात सही है कि इस किताब का एक संदर्भ था। There was a context to this book, and actually we started thinking about putting together this book after the attack on Jawaharlal Nehru University. So there was a context to this book, but then the book took time, और उस बीच में काफ़ी कुछ हुआ। और अब जब हम किताब पर बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक और ऐसी हालत में पहुंच गए हैं जिसमें विश्वविद्यालय के बारे में बात करना, यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना, हिंदुस्तान में खासकर बेमानी सा मालूम पड़ने लगा है। हिंदुस्तान एक ऐसे संगीन हालात से गुजर रहा है जिनमें विश्वविद्यालय की आज़ादी की बात करना एक लग्जरी जैसा लगता है। अक्सर हम लोग एकेडमिक आज़ादी की बात करते हैं या बात करते हैं कि क्लासरूम में आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश में नागरिकता के कानून पर अपना विरोध जाहिर करने लोग निकलते हैं और एक के बाद एक 23 लोगों को मार दिया जाता है, 23 मुसलमानों को मार डाला जाता है, सैकड़ों लोग जेल में डाल दिए जाते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट्स निकलते हैं और उन पर बुरी तरह हमला होता है, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमला होता है। तो मुझे अपनी बात बहुत छोटी लगने लगती है कि हमें क्लास में बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, और हमें किताबें लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, और लेख लिखने की आज़ादी होनी चाहिए। इन सब का एक रिश्ता है। विश्वविद्यालय के बारे में जो बातें की जा रही हैं, खासकर ऐसे वक्त में, ऐसे मुल्क में जिसमें अक्सरियत पसंदी या मेजॉरिटेरियनिज्म बिल्कुल ऊंचाई पर हो, उस वक्त विश्वविद्यालयों का क्या काम होता है, ये एक ऐसा विषय है जिस पर अब हमें सोचने की जरूरत है कि उस वक्त विश्वविद्यालय क्या करेंगे। जैसे कुछ समय पहले
सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने। और ये विडंबना की बात है कि यह बात उन्होंने कही जिन्होंने खुद बाबरी मस्जिद की ज़मीन विश्व हिंदू परिषद के लोगों को हवाले कर दी, ये मानते हुए कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद जिंदा थी, मस्जिद में नमाज होती थी, इबादत होती थी। इसके बावजूद उस ज़मीन पर विश्व हिंदू परिषद, जो कि राम के गार्जियंस कहे गए, उनका हक है। So that was quite ironical that a Supreme Court judge actually talked about the role of Supreme Court in the times of majoritarianism. But following him, I also think about the role of universities in the time of majoritarianism, heightened majoritarianism. What universities are supposed to do? Universities, especially if we take the context of India or countries like India, where majoritarian politics is ruling nearly all aspects of our life, what universities are supposed to do? I think the role of a university would be to, as Anita Rampal said, to emphasize or to put a stress on, emphasis on shared ways of living, and to arouse curiosity about the other. It's not othering, but recognizing the other and establishing a relationship with the other. And it would be a respectful relationship. I won't say it would be a relationship of love, because love, again, is something you attain after long association. But respect you can have. तो ये काम यूनिवर्सिटी का है, जिसमें अलग अलग किस्म के लोग किस तरह एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के अलग होने को तस्लीम कर सकते हैं और उसकी इज्जत कर सकते हैं। सिर्फ ये उसको बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि उसको लेकर एक तरह की उत्सुकता कि आखिर आप कैसे रहते हैं, और उस उत्सुकता के चलते उनसे एक रिश्ता बनाने की कोशिश। यूनिवर्सिटी का इस वक्त शायद ये काम होगा। और दूसरी चीज जो यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण होगी वह है कि मुल्क के डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट को बचाए रखना। जब मुल्क की एक बड़ी आबादी ये मानने लगे कि उसके इंटरेस्ट और स्टेट के इंटरेस्ट मिल गए हैं, तब ये बतलाना कि एक काम होता है एक आजाद शख्सियत का, और वो काम है हमेशा सत्ता से या पावर से एक क्रिटिकल रिलेशनशिप बनाए रखना, एक आलोचनात्मक रिश्ता बनाए रखना। सो टू प्रिजर्व दिस critical stance and to inculcate the value of criticality is again a very important task universities have to perform in these majoritarian times, and in times when all institutions are crumbling or have already been bulldozed or have eroded. Universities is also one of those institutions. तो इसलिए कुछ बात जो पहले हो रही थी कि why didn't we talk about it before 2014? It's not that these things were not being talked about before 2014. If you read the report of Yashpal Committee, Yashpal Committee talks about autonomy, and Yashpal Committee says that, as Professor Anita Rampal has rightly said, that autonomy is not something you give as a reward. Autonomy is a condition for excellence. So, and when you say autonomy, university autonomy, it has to be autonomy of university in all its aspects. ऐसा नहीं हो सकता कि autonomy का मतलब सिर्फ वाइस चांसलर की autonomy होगी, वो फैकल्टी की autonomy होगी, और वो यूनिवर्सिटी के हर गोशे में वो autonomy देखनी चाहिए। तो बाकी जितने भी बातें की गई हैं कि यूनिवर्सिटी का समाज से रिश्ता होना चाहिए,
वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यूनिवर्सिटी का समाज से एक अजीबोगरीब किस्म का रिश्ता होता है, क्योंकि समाज बहुत सारी बंदिशों में बंधा हुआ होता है। हम एक समाज नहीं है, कई तरह के समाज हैं, कई तरह के समाजों से निकल के हम यूनिवर्सिटी में आते हैं और वे सारे समाज अपनी शक्ल में लोगों को ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज होती है जो हमारी शख्सियत है, our own personality. So all of us grow as individuals, and when we grow as individuals, uh, we feel a tension growing between our personalities or our individuality and the community or society we belong to. So that society wants to dominate you or wants to turn you into its image, and you fight with it. तो वो तनाव, वो टेंशन आपको हमेशा दिखलाई पड़ेगा, वो रिलीजियस कम्युनिटी में दिखलाई पड़ेगा, वो कास्ट कम्युनिटी में दिखलाई पड़ेगा। इसलिए यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स। आप कभी भी पहले जिन पर आप सवाल नहीं करते, आप ऐसे सवाल करना शुरू करते हैं, और ये बहुत अहम चीज है जो एक यूनिवर्सिटी करती है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए, और इसलिए समाज से यूनिवर्सिटी के रिश्ते में मैं मुझसे माफ करना, ये आई थिंक मेरे ख्याल से आपको पहले की तरह रखना होगा, ये टेढ़ा हो गया है फ्रेम। ओ अच्छा, सॉरी, इज इट ओके नाउ? यस, sorry. So as I said that this relationship is a very tense relationship, और उसमें जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी हमेशा समाज की बात माने और समाज किसी भी तरह का हो, बल्कि उसको समाज से लड़ना पड़ता है। और इसलिए यूनिवर्सिटी को ये कहा जाता है, जो बात इस किताब की फेस में हमने लिखने की कोशिश की है, कि वो एक तरह की आजाद जगह है। कई लोग हैं जो पहली बार यूनिवर्सिटी कैंपस में आके आजाद महसूस करते हैं। लड़कियां पहली बार आजाद महसूस करती हैं, वो खुद मुख्तारी का एहसास करती हैं। ऐसी कम्युनिटी से आए हुए लोग, जिनसे दूसरे लोग रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं उनके समाज में, वे यहाँ आकर एक आजाद और इंसानी रिश्ता एक दूसरे से कायम करते हैं। हम बिल्कुल अलग अलग किस्म के लोगों से रिश्ता कायम करते हैं, और ये रिश्ते बहुत तरह के होते हैं। मोहब्बत के रिश्ते हो सकते हैं, दोस्ती के रिश्ते हो सकते हैं, बहुत तरह के रिश्ते हो सकते हैं। मैं उन तमाम चीजों को दोहरा नहीं रहा हूँ जो लोगों ने कही है, जो नॉलेज प्रोडक्शन की बात है, नॉलेज क्रिएशन की बात है, नॉलेज ट्रांजैक्शन की बात है, और उस पर काफी लंबी बात हो सकती है। टेक्नोलॉजी की भूमिका है, टेक्नोलॉजी कैसे अपनी भूमिका अदा करती है, और गवर्नेंस सिस्टम्स की बात है। ये तमाम चीजें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। लेकिन इस वक्त 2021 में 17 अगस्त को जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उस चीख को नहीं भूल सकता जो 13 अगस्त, 12 अगस्त या 11 अगस्त को कानपुर के उस वीडियो में आपको सुनाई पड़ती है। इसमें एक छोटी बच्ची अपने बाप से लिपटी हुई है और उसको चारों तरफ से लोग मार रहे हैं और पुलिस लेके जा रही है। अगर यह हमारी आज़ादी का हाल है, और इसके बाद भी समाज में, अंग्रेजी में कहते हैं, the society doesn't feel revolted in its guts, and now we see incident after incident in across India, जो एक दूसरे से सीवियरिटी में, हॉरर में बड़े हुए होते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि यूनिवर्सिटी पर बात करना इस वक्त कितना मुनासिब है। यूनिवर्सिटी को अपना रोल इस समाज के बरक्स तय करना ही होगा, और हम सारे लोगों को तय करना होगा। और मैं अंत बहुत निराशा पर नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हिंदुस्तान की तकरीबन 100 यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जिस तरह
नागरिकता के नए कानून के खिलाफ बाहर निकल के, सड़क पे निकल के इजहार किया अपने क्रिटिकल फैकल्टी का, वह साबित करता है कि बावजूद तमाम कमजोरियों के हमारी यूनिवर्सिटीज ने कुछ भूमिका अदा की है, और वही चीज हमें हिम्मत देती है और आशा देती है। मैं अपनी बात अभी यहीं रोकूंगा। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे नुक्ते हैं, और इस किताब में जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, और उन पर इंट्रोडक्शन में बात रखी गई है, और अलग अलग उन पर बात हो सकती है, लेकिन वे सारी बात, जैसा मैंने कहा, कि एक ऐसे वक्त में हो सकती हैं जब हम सोचने की हालत में हों। अगर वह चीख लगातार मेरे दिमाग में घूम रही है, और मैंने इस वाक़े को अभी 2 दिनों में कई बार कई लोगों से साझा किया, और आपसे भी कर रहा हूँ कि मेरे पास एक फ़ोन आया 13 तारीख को लखनऊ से। उनसे मेरी वाक़फ़ियत बहुत कम थी, लेकिन फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इस वीडियो को देख नहीं पाया, और ये जो बच्ची चीख रही है, मुझे अपनी बेटी की याद आई, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़हर खा लूँ। और मैं बिल्कुल खामोश हो गया। मेरी अब तक की जितनी तालीम है, मैंने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के पास इसका जवाब नहीं है। वो कैसे हिम्मत दें, कैसे हौसला दें, कैसे खड़ा होने, लड़ने, और कैसे ये बताने की कि नहीं, ये समाज आपका है, ये मुल्क आपका है, बावजूद इस वहशत के, और हम सब साथ हैं। अ, ये कुछ सवाल हैं जो जिनका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है, और दुनिया के किसी भी कोने में जब इस तरह की चीज़ घटित होने लगती है, जब एक ताकत बढ़ती है जो दूसरों को कहती है कि हम आपको बताएँगे किस तरह ज़िंदगी जीनी है, अ, तो फिर यूनिवर्सिटी ये सिखाती है कि आपकी अकेली आवाज़ भी हो, तो आपको खड़े होकर ये कहना है कि यह हक हम किसी को नहीं देते। वो मज़हब के नाम पे हो, वो राष्ट्र के नाम पर हो, वो समाज के नाम पर हो, या हम हक किसी को नहीं देते कि वो एक शख्स को ये बतलाए कि उसे ज़िंदगी कैसे जीनी है। यूनिवर्सिटी का यही काम है कि वो उस शख्स के साथ खड़ी हो, उस अकेले शख्स के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया। अपूर्वन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस किताब को एडिट करने के लिए भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी, और आपके जो विचार हैं वो हमारे साथ साझा करने के लिए। आस्था है क्या रिश्ता होना चाहिए, उस पर जो चीज़ें आपने हमारे सामने रखी हैं वो कहीं न कहीं ये कहना चाहिए कि सोच को जिला बख्शने वाली है। एंड ओवरऑल वी होप दैट दिस हैज़ बीन अ वेरी फ्रूटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ अस, और काफ़ी नई चीज़ें सीखने भी मिली, और बहुत सारे सवाल भी खड़े किए गए हैं हमारे जो ऑथर के साथ, जो हमारे स्पीकर्स हैं उन्होंने हमारे सामने सवाल भी खड़े किए हैं। तो आई होप दैट वी विल पॉन्डर ओवर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड विल कंटिन्यू दिस discussion about society, education, social phenomenon and their relation with our educational institute. तो इसी के साथ में जो है आज का ये जो हमारा दूसरा बुक डिस्कशन का प्रोग्राम है वो यहाँ पर खत्म होता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक नई सीरीज हमने शुरू की है जिसमें कुछ अहम बुक्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, खुद ऑथर के साथ भी, और जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी। जो पहली बुक थी जिसमें जमात इस्लामी के अमीर साबितुल्लाह हुसैनी साहब की जो नई बुक है, उस पे डिस्कशन था। फिर उसके बाद में आज हमने अब्दुल साहब की जो बुक है उस पर डिस्कशन किया, और खुशी की बात ये है कि हमने तीसरा जो हमारा डिस्कशन है वो भी तय हो गया है। इरफान अहमद साहब की ये जो बुक है शायद आप लोगों के नज़र से गुजरी होगी, रिलीजन एज क्रिटिक। ये बुक का नाम है, काफ़ी मशहूर बुक है, ऑक्सफोर्ड ने पब्लिश की है इसे। तो पूरा नाम तो इस तरीके से, रिलीजन एज क्रिटिक, इस्लामिक क्रिटिकल थिंकिंग फ्रॉम मक्का टू मार्केट प्लेस। So we haven't decided the list of speakers yet, but we will hopefully
soon come out with the program and the schedule, and we hope that all of you will join us and stay for the entire discussion the way you have stayed with us today. और उसी के साथ में जो है इंशाल्लाह आप लोगों से हम लोग विदा लेते हैं और आप तमाम लोगों का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं, खासतौर से जो हमारे स्पीकर्स हैं और अपूर्वा साहब हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।